Welcome to Nivesh Pe Charcha. In this series, we aim to dive deep into the world of investments, strategies, and personal finance, seeking to make complex financial concepts simpler and more relatable. Whether you're just starting your investment journey or looking to perhaps refine your approach, this show aims to provide insights and knowledge that could help you make better decisions for your financial future. Now, investing isn't just about numbers or market trends. It's about the psychological factors that drive our decisions. How many of us have acted impulsively due to FOMO or fear of missing out, or felt overly confident, thinking we've figured out the market timing? These emotional biases often dictate our financial choices without us even realizing it. But what if we could understand these behaviors better and avoid the common traps that could hold us back from making smarter investment decisions? Today we have a very special guest with us, Viral Bhatt, the founder of Money Mantra, a consultancy that seeks to help individuals achieve financial freedom. With over 17 years of experience in personal finance, Viral has worked with clients to break down financial barriers, plan better, and invest smarter. He's frequently invited to share his insights on prominent media platforms, where his practical and actionable advice resonates with both novice and experienced investors alike. At Money Mantra, Viral seeks to offer holistic financial planning, helping clients establish a solid foundation through fundamental investment strategies, while at the same time managing the emotional factors that can often derail sound financial decisions. His approach centers on providing personalized, practical advice that could cover every aspect of financial life, from tax planning to wealth creation. In today's episode, we will be discussing how behavioral biases like FOMO, loss aversion, and overconfidence may impact your investments. Viral will share his insights on how to overcome these biases and build a more disciplined, long-term approach to investing. So let's dive right in and get started on understanding how you can improve your investment mindset. Viral, thank you so much आज हमारे साथ बात करने के लिए. Thank you, Karunya. Thank you for having me today. तो सबसे पहले ये बताइए कि पैसे इन्वेस्ट करते टाइम लोग अक्सर अपने दिमाग से ज्यादा दिल से क्यों डिसीजंस लेते हैं? आई थिंक ये इमोशंस की बात होती है। हम दिमाग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और दिल से सोचते हैं, क्योंकि हमारे गोल्स के बारे में सोचते हैं और गोल्स के साथ साथ हमने हमारा जो पैसा है उसके पीछे हमने काफ़ी मेहनत की होती है। तो मुझे लगता है कि ये दिमाग को थोड़ा साइड में रखकर हम दिल को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और डिसीशंस वो हिसाब से ही लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग रिटर्न्स को हम नंबर से कैलकुलेट करते हैं, बट मुझे लगता है कि एज ए इंडियन हमारे यहाँ पे बिहेवियरल बहुत ही बड़ा एक एस्पेक्ट होता है और इसके लिए शायद से दिल ज़्यादा आगे रहता है दिमाग से। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी आपने क्या फोमो को प्ले आउट होते देखा है? कोई एग्जांपल परहैप्स व्हिच यू कैन शेयर? देखिए कारुण्या, टुडे इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक मुझे लगता है कि हम रियल वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हैं रादर देन रियल वर्ल्ड। आज सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है हमारे दिमाग में। मेरे एक क्लाइंट्स थे, मैं उनके साथ बैठा था तो वो शेयर कर रहे थे कि उन्होंने उनके पेज के ऊपर कोई एक रील देखी जहाँ पे उनके ही कोई एक फ्रेंड बता रहे थे कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करके इतना रिटर्न्स मिला, और वो चीज़ से वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, बट हालांकि उनको लॉस हुआ, राइट। और उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। रादर देन रियल वर्ल्ड, हमको रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए। सोशल मीडिया पे आजकल इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, कितने सारे स्कैम्स होते हैं, कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में
जहाँ पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे डिपेंड रहकर हमको एज़ फार एज़ इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न डिसीजंस तो नहीं लेना चाहिए। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में तो हमको जीना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइज़र होना, फाइनेंशियल प्रोफ़ेशनल होना, जो शायद से ये पर्टिकुलर फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, वो एलिमिनेट कर सकता है अपने लाइफ़ में। तो अगर हम बिहेवियरल मिस्टेक्स की बात करें तो जब बाजार वॉलेटाइल होता है या गिरता हुआ नजर आता है एज अ लार्जर ट्रेंड, तो पैनिक करके कई लोग एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या फिर दे कम्प्लीटली एग्जिट ऑल देयर म्यूचुअल फंड्स। तो अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक ये एक सबसे बड़ी बिहेवियरल मिस्टेक है? बहुत ही बड़ी मिस्टेक है क्योंकि देखिए जब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें और एसआईपी की बात करें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसमें तो मुझे लगता है कि कोई भी मार्केट की सिचुएशन हो रादर देन अप हो या रादर देन डाउन हो कोई भी सिचुएशन में आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। क्यों? क्योंकि अगर हम बढ़ते मार्केट में भी अगर एसआईपी को देखें तो हमारी जो फंड की एनएवी है वो एप्रिशिएट होती है, राइट? और जब डाउन होती है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि भई हमारा जो पैसा है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आउट हो रहा है और मुझे यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स में। एवरी मंथ मैं परचेज़ करता हूँ, मार्केट डाउन है तो मुझे डाउन मार्केट में यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं और एप्रिशिएट में मेरी एनएवी बढ़ती है। तो बोथ प्लेसेस इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी, राइट? सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और अगर हम करंट सिचुएशन भी देखें तो आज के मार्केट में भी इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन जाता है, तो सोचते हैं कि एसआईपी करने का फ़ायदा नहीं है। बट एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो रियल वेल्थ क्रिएशन हम कहते हैं हमेशा एज़ अ स्ट्रैटेजी, वो लोग समझ नहीं पाते हैं और ये मिस्टेक कर बैठते हैं। सो मेरा तो रिक्वेस्ट यही होता है, अर्ज हमेशा यही होता है कि पहले आप समझिए कि जो आप प्रोडक्ट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या है और उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। और एसआईपी के लिए हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी मार्केट हो आपको डेफिनिटली कंटिन्यू रखना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो इम्पोर्टेंट है रादर देन मार्केट का डाउन जाना या मार्केट का अप जाना। ऑलराइट। सिंस वी टॉकिंग अबाउट बायसेस, लॉस अवर्जन यानी कि नुकसान का डर कई बार क्या होता है कि गेन्स की खुशी से ज्यादा वो ज्यादा हावी हो जाता है। राइट। तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस अवर्जन या फिर इससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गोल एक ऐसा एलिमेंट एलिमेंट हो सकता है हमारे प्लानिंग में जो उसके ऊपर ज़्यादा हमको फोकस रखना चाहिए। सी हम प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं रखते, हम प्लानिंग के ऊपर फोकस नहीं रखते और हम रिटर्न्स के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल वेलनेस की जब बात करते हैं, तो हमको प्लानिंग और प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन रिटर्न्स। सी रिटर्न अगर हम देखें तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट? अगर हम वो जर्नी अगर पूरी कंप्लीट करते हैं तो हमको वो रिटर्न्स अपने आप मिल सकते हैं, राइट? अगर हम वो जर्नी को कंप्लीट करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लॉस डेफिनेटली क्योंकि देखिए क्या होता है कि लॉस जब है वो पिंच करता है, ऐसा जब नेगेटिव में दिखता है तो डेफिनेटली हमारा माइंडसेट एक ऐसा होता है कि हमको वो पिंच करता है, हमको लगता है कि अगर मेरा पैसा लॉस में जा रहा है तो मैं तुरंत निकल जाता हूँ, बने नहीं रहना चाहिए, डर लगता है। बट मुझे लगता है कि जो अगर मैं वो चीज़ को मैं मेरे प्लानिंग के साथ, मेरे फाइनेंशियल गोल के साथ कनेक्ट करता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स को, तो ये जो लॉस एवर्जन की बात है, जो बायसिस है, वो बायसिस मैं हटा सकता हूँ मेरे प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रादर देन मैं अगर सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागता हूँ, राइट? तो मुझे लगता है कि मुझे डर हमेशा रहेगा अगर मैं रिटर्न्स के पीछे भागता हूँ। बट मैं अगर प्रोसेस के पीछे भागूँगा, प्लानिंग के पीछे भागूँगा, तो मुझे लगता है कि ये लॉस एवर्शन जो बायस है वो निकल सकता है। तो चलिए एक और बायस की बात करते हैं फिर, रीसेंसी बायस। नाउ ऑफन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है रीसेंट फ्यू इयर्स में या फ्यू मंथ्स में, तो चलो इसी में पैसा डाल देते हैं। इसको रीसेंसी बायस बोलते हैं। तो नाउ हाउ कैन वी अवॉइड दिस या फिर इससे हम बच कैसे सकते हैं? देखिए इट इज़ क्वाइट नेचुरल कारुण्या कि ये बायसिस होना, देखो कुछ हद तक हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बट निकल जाएगा वो हम नहीं कह सकते हैं। हालाँकि रिसेंसी बायस यानी एक अगर टिपिकल केस ले ले
मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस से अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, बट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटेड इन फ्यूचर, राइट? सो और म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हमेशा हम कहते हैं। अभी ये जब कोई लोग सुनते हैं तो लगता है कि मोनोटोनस है, ये चीज़ सही में होगी नहीं होगी पता नहीं है, और लोगों को ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क याद नहीं रहता है, बट म्यूचुअल फंड सही है वो याद रह जाता है, राइट? तो ये बायस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो जैसे हमने देखा कि रिटर्न्स के ऊपर फोकस ना करके प्रोसेस के ऊपर अगर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे तो ये जो भी बायसिस हमारे बिहेवियरल इसमें आते हैं वो उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं और अटेम्प्ट ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट निकलना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर पास्ट परफॉर्मेंस से देखकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उनको वो नुकसान होता है, तब वो उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये मेरा बायसिस था और मैंने ये गलती कर दी। तो शायद से एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैं निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, बट वो कंप्लीट निकलना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, वी कैन टेक अ अटेम्प्ट टू इट। बट यू नो वी आर हियर टुडे सारे बायसेस को स्लाइस एंड डाइस करने के लिए। श्योर। तो अब बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस बायस की। कई लोग टॉल क्लेम्स करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि दे कैन टाइम द मार्केट। क्या ये म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिलता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मार्केट को टाइम करना वो फंड मैनेजर पे छोड़ देना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि स्पेंडिंग द टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, राइट? क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने बिल्ड किया है वो पर्टिकुलर टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। तो मैं अगर मैं मार्केट को टाइम करते रहूँगा तो मैं मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा और मैं रिटर्न्स भी नहीं ले पाऊँगा। म्यूचुअल फंड कंपनियाँ जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं जो फंड्स में, उस ऊपर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है हमको हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मोर ऑन द डिस्कशन साइड कि कैसे मैं मेरा प्लानिंग सही से कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, डायरेक्शन मिल सकता है मुझे, और मैं रिटर्न्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूँगा, तो मेरे लिए बेटर होगा ओवरऑल। काफी मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स डूएबल एंड बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली, मुश्किल है सुनने में, बट प्रैक्टिकली जब मेरे साथ कोई मुझे हैंड होल्ड करने वाला रहेगा, राइट? मुझे कोई गाइड करने वाला रहेगा, एज़ अ फाइनेंशियल कोच अगर मेरे साथ कोई पर्सन रहेगा, तो मुझे लगता है ये जर्नी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। और जो भी बायसिस होते हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा कि उसको एलिमिनेट करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट कहीं न कहीं मैं उससे कैसे मैं पहले से ही प्रोएक्टिवली उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता हूँ। एज एन इंडिविजुअल डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट हाँ, कोई प्रोफेशनल हो सकता है मेरे ये जर्नी में, तो मुझे ये काम आ सकता है और हेल्प हो सकता है। यू नो अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि एसआईपीज आर अ बिहेवियर करेक्टर। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा थोड़ा और समझाइए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? सो देखा जैसे हमने करूँया कि ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स बायसिस हमारे लाइफ में होते हैं, और एसआईपी एज अ स्ट्रेटजी, ये सब जो भी बिहेवियर्स हमारे बायसिस आते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए काम आते हैं। लॉस एवर्सन हो या रिसेंसी बायस हो, राइट? जैसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे अगर मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसको ज़्यादा मैं अगर इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो मुझे लगता है कि एसआईपी वो पर्टिकुलर पार्ट को ओवरकम करने की कोशिश करती है कि मैं मार्केट की मूवमेंट्स को ज़्यादा ना सोचूँ। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, मैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट में एंटर हो रहा हूँ, एवरी मंथ एंटर हो रहा हूँ, व्हाटएवर मे बी द अमाउंट, बट मैं एवरी मंथ एंटर हो रहा हूँ। मार्केट अप हो या डाउन हो, मैं टाइम स्पेंड करने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ रादर देन टाइमिंग इन द मार्केट, राइट? सो मुझे लगता है कि एसआईपी एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जहाँ पे मुझे मार्केट में एक पर्टिकुलर अप्रोच लेकर, एक डायरेक्शन लेकर, मैं एवरी मंथ कॉन्फिडेंस से पेशेंसली इन्वेस्टमेंट अगर मैं करूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, और ये कंटिन्यूटी मुझे एसआईपी देती है। तो मुझे लगता है एसआईपी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कैन adopt that particular strategy and invest confidently and having the continuity in mind, मैं मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको मैं हासिल कर सकता हूँ। तो
अब आप हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने बोला कि अगर कोई एक फाइनेंशियल कोच या एडवाइजर हो तो आपकी जर्नी स्मूथ हो सकती है। तो निवेशकों के इमोशंस या इमोशनल बिहेवियर को मैनेज करने में एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल रहता है? देखिए इमोशनल अप्रोच जब मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोचता हूँ, तब डेफ़िनेटली मेरा एक माइंड में इमोशनल एस्पेक्ट डेफ़िनेटली होता है कि मुझे किसी मेरे ड्रीम को हासिल करना है। मुझे कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है। बट विथ दैट मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कारुण्या कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए। इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अप्रोच यानी क्या? कि किसी की हेल्प लेना, राइट? और मैं मेरे इंडिविजुअल काम में मैं बिज़ी हो सकता हूँ, राइट? बट मुझे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिले, जो जो पर्सन इन द मार्केट है, जो हमेशा मार्केट को देखा है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है और चीज़ों को समझा हुआ है। तो अगर कोई पर्टिकुलर वो हैंड होल्ड करने वाला हो और जिसको मैं कहता हूँ कि भई जैसे हर एक आप कोई भी एक इंडस्ट्री ले लीजिए आप। मैं इसको स्पोर्ट्स के साथ भी रिलेट करूँ, राइट? क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो हमेशा एक कोच का इम्पोर्टेंस हमेशा रहा है, राइट? अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ों से डाउन हूँ, हुँ। अगर मैं सोचता हूँ ऐसा कि मैं खुद से मैं मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ और मार्केट डाउन है, तो मैं भी डाउन हो जाता हूँ। बट अगर मेरे साथ कोई फाइनेंशियल कोच है, तो मुझे वो हैंड होल्ड करता है, वो मुझे समझाता है कि ये एक पीरियड जो है, वो अगर मैं वो पीरियड में मैं निकल चुका हूँ, अगर मैं निकल जाता हूँ, मैं उसको पास ऑन कर देता हूँ और मैं कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट भी कर लेता हूँ, तो ये पीरियड का मुझे जो रिवॉर्ड है, वो आगे जाकर डेफ़िनिटली मिल सकता है। वो कहने वाला कोई होना चाहिए, वो कोई हैंड होल्ड करने वाला होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कोच का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो डेफ़िनेटली एक डायरेक्शन के साथ एक इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगर इन्वेस्टमेंट कोच या एक फाइनेंशियल कोच होता है, तो मुझे मेरे बायसेस भी निकल सकते हैं, मुझे डायरेक्शन भी मिल सकता है और मुझे जो हासिल करना है, मेरे ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो, वो मैं मेरे एक प्लानिंग वे में मैं हासिल कर सकता हूँ। तो एज़ एन एक्सपर्ट जो सालों से इतने लोगों को एडवाइस करते हुए आ रहे हैं, आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा गोल्डन बिहेवियरल मंत्रा है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली देखा गया है कि लोग बहुत बार शॉर्टकट ढूँढना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। मुझे लगता है कि रादर देन थिंकिंग ऑन द दोज़ लाइन्स हुँ। शॉर्टकट को अगर हम सोचते हैं तो हम कोई एक पर्टिकुलर प्लान को हासिल नहीं कर पाएँगे, गोल को हासिल नहीं कर पाएँगे। और जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे क्योंकि शॉर्टकट से अगर हम रिटर्न्स के उम्मीद रख सकते हैं, डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म में शायद से मिल भी जाए, बट वो सस्टेनेबल कितना है, वो उस पे क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस के बारे में सोचेंगे, कितना मैं टाइम स्पेंड करूँगा और मैं एक प्लान वे में मैं अगर मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा, तो मुझे लगता है डेफ़िनिटली पेशेंस से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो गोल्डन मंत्र यही है कि पेशेंस रखिए और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट को टाइम करने के बारे में ना सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, वो भी एक इम्पोर्टेंट मंत्र है जो हमेशा हम भूल जाते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। हुँ। तो अगर हमारे व्यूअर्स जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड मनी, तो ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या एनालॉजी जो आप सजेस्ट करना चाहें? डेफ़िनेटली 2-3 किताबें हैं कारुण्या जो लोगों को देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। एक तो साइकोलॉजी ऑफ मनी ओके। जहाँ पे आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मंत्रास मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। और अमित त्रिवेदी करके एक ऑथर है इंडिया के उन्होंने द रूरल कोस्टल राइड उन्होंने बुक लिखी है, जहाँ पे आपको मार्केट में कैसे आपको डटे रहना है, कैसे आपको टाइम स्पेंड करना है हुँ। और उसके फ़ायदे क्या है। और मुझे लगता है और एक बुक सोचनी चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए, लेट्स टॉक मनी मोनिका हलन की, जहाँ पे जो बेसिक्स फाइनेंशियल फंडेज़ होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, वो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट टू शिफ्ट गियर्स। अभी तक तो हमने काफ़ी सीरियस कॉन्सेप्ट्स और बिहेवियर के बारे में बात की है। अब मैं आपसे कुछ पर्सनल और आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में सवाल पूछूँगी हमारी अगले सेगमेंट के लिए, जिसका नाम है इनर बैलेंस शीट। सो आर यू रेडी? या तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी में एज़ पर यू आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही और उससे आपने क्या सीखा?
सी बीइंग इन दी स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 18 इयर्स, शुरू में मुझे भी पेशेंस नहीं था। मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ परफेक्ट एसेट क्लास जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सोचा था इनिशियली कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया, मार्केट्स को देखा, डिफरेंट एसेट क्लास के रिटर्न्स देखे, तब समझा कि नहीं, डाइवर्सिफिकेशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। इफ यू कुड गो बैक इन टाइम तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? आई थिंक डोंट फाइंड एनी शॉर्टकट्स इन योर इन्वेस्टमेंट्स, कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और कल पैसा डबल हो जाएगा, राइट? टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को, और डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे, राइट? ये बहुत ही बेसिक है, सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, राइट? बट टू टू बी वेरी फ्रैंक, यही एक ऐसे गोल्डन मंत्रास हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको काम आएंगे और आपको रिवॉर्ड्स देंगे। पर्सनली स्पीकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का आपके लिए क्या डेफिनेशन है? आई थिंक जब मैं कभी भी मुझे स्पेंडिंग करनी है मेरे लाइफ में और मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तुरंत से वो स्पेंड कर देता हूँ, राइट? वो मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के दिन में लोग उल्टा सोचते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली नहीं होती है और पैसा स्पेंड कर देते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मुझे मिली है सही में, तो मैं बिना कोई सोचे मैं पैसा स्पेंड कर सकता हूँ, जब मुझे स्पेंड करना है मैं कर सकता हूँ। एंड विरल, आपके हिसाब से आपकी जॉब का बेस्ट मोस्ट फन पार्ट क्या है? मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट है लोगों को पैसों के बारे में समझाना, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई पर्सन आके मुझे पूछता है कि विरल आप मेरा पैसा मैनेज करो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, राइट? क्योंकि इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं, लोगों को कुछ हासिल करना होता है और वो ऐसा सोचते हैं कि विरल उसके लिए उनको हेल्प करके देगा, उनके गोल्स अचीव करके देगा, उनके जो एस्पिरेशन है उसको हासिल करके देगा। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट पार्ट है मेरे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली एक पीस ऑफ एडवाइस या कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें आपकी तरफ से, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक पेशेंस, अगेन पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लोग ये पेशेंस के बारे में भूल जाते हैं, रादर देन फाइंडिंग अ रिटर्न पार्ट इन योर इन्वेस्टमेंट। आई थिंक प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। बिलीव इन योर प्रोसेस, बिलीव इन योर प्लानिंग, बिलीव इन योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट? एंड रिटर्न्स इज़ द बाय प्रोडक्ट। ग्रेट विरल, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपकी क्विक एंड क्वर्की आंसर्स, थैंक यू फॉर बीइंग सो विटी विद द रैपिड फायर सेगमेंट, एंड हमारे साथ आज बात करने के लिए, स्पेशली ये बायसेस को कैसे ब्रेक किया जाए और कैसे अपने इन्वेस्टिंग पैटर्न्स को प्रोएक्टिवली चेंज किया जाए, ये बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम की अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।